ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کی بات تھی۔ عائشہ نامی لڑکی ایک شہر میں رہا کرتی تھی۔ عائشہ نہایت پڑھی لکھی اور ایک خود مختار لڑکی تھی۔ وہ دل کی بہت صاف اور محنت پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ کالج کے دنوں میں اس کی دوستی ایک علی نامی شخص سے ہوئی۔ علی بہت خیال رکھنے والا، میٹھا بولنے والا اور ہر وقت عائشہ کی تعریف کرنے والا لڑکا تھا۔ وہ عائشہ کو لگتا تھا کہ یہی میری سچی محبت ہے۔ علی اکثر کہتا تھا، عائشہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، آزما کے کبھی دیکھ لینا، تم مجھے بہت پسند ہو۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور عائشہ علی میں بہت سیریس ہونے لگ گئی۔ ارے عائشہ ایسے گھور کے کیا دیکھ رہی ہو، لنچ کرو نا۔ علی، کیا تم واقعی میں میرے بھی اتنا انٹرسٹیڈ ہو؟ کیونکہ میں تمہارے معاملے کو لے کر بہت سنجیدہ ہوں۔ میں بہت سنسیئر ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے اکثر ڈر لگتا ہے کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے نہ جائے۔ ارے نہیں عائشہ میری جان، یہ تمہارا وہم ہے، اور وہم کو وہم ہی رہنے دو۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اور ضرور ہم جلد شادی بھی کریں گے، بے فکر رہو۔ مگر وقت گزرتا گیا اور علی بیرون ملک چلا گیا۔ ہر طرح کا موسم بدلا، کئی سال بیت گئے اس بات کو، مگر عائشہ ابھی تک علی کا خیال لے کر دل میں پریشان رہتی تھی۔ علی، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ تم نے اچھا نہیں کیا، چاہیے کہ تم اب واپس آ جاؤ۔ اور عائشہ اکثر علی کی یاد میں بہت پریشان رہتی تھی۔ ہائے اللہ، اب تو میری امین کی شادی کر دیں گی، وہ کہاں اتنا انتظار کریں گے؟ علی اور جلدی آ جاؤ۔ چند ہی دنوں میں عائشہ کی والدہ اس کی شادی ایک احمد نامی شخص سے کرتی ہے۔ احمد ایک بہت اچھا، سیدھا سادہ اور کم بولنے والا انسان تھا۔ وہ ہر وقت عائشہ کے تعریفوں کے بل نہیں باندھتا تھا۔ شروع میں عائشہ کو احمد میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس سے ہر وقت بیزار رہا کرتی تھی اور چھپا کرتی تھی۔ کچھ دنوں بعد عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ بہت شدید سر میں درد ہے، کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا، بہت ٹیمپریچر ہے آج میرا۔ پریشان نہ ہو عائشہ، میں تمہارا خیال رکھوں گا کہ میں دوا بھی کی دی ہے اور کھانا بھی رکھ دیا ہے۔ مزید کوئی چیز چاہیے تو بتانا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اکیلا چھوڑ کے کچھ ٹائم کے لیے۔ میرے سر میں بہت درد ہے، تب چلے جاؤ۔ ایسے کیسے چلا جاؤں؟ میں نے آفس سے چھٹی کی ہے تمہاری لیے۔ تمہاری طبیعت خراب ہے عائشہ، میں اس حالت میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے میرے لیے چھٹی کی، شکریہ احمد، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ احمد کا بے انتہا پیار اور اس کا احساس دیکھ کر عائشہ پوچھتی، احمد، تم میرا اتنا خیال رکھتے ہو، کیا تم تھک نہیں جاتے؟ میں نے تو آج تک تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اگر تم تو بہت خیال رکھتے ہو میرا۔ ارے عائشہ ادھر آؤ میرے پاس، تم میری بیوی ہو، تھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم میری ذمہ داری ہو، میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ ایسی باتیں کر کے شرمندہ نہ کرو مجھے، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ عائشہ بہت خوش ہو جاتی ہے یہ سن کر۔ انہی دنوں میں علی کا میسج ایک دم سے آتا ہے عائشہ کو۔ عائشہ یہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، علی کا میسج کیوں آیا میرے پاس اتنے سالوں بعد؟ علی نے لکھا، آئی ایم ریلی سوری عائشہ، ان دنوں میں بے حد مصروف اور بیزی ہوں، بعد میں بات کریں گے جب مجھے کبھی ٹائم ملا۔ عائشہ کوئی جواب نہیں دیتی اسے، مگر اسے بہت غصہ آتا ہے اور اسے بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بوائے فرینڈ ہمیشہ صرف محبت کے وعدے کرتا ہے، مگر شوہر جو ہوتا ہے وہ نبھا کے دکھاتا ہے۔ میں پاگل تھی جب اس جیسے نکھٹو کی باتوں میں آ گئی، یہ تو میرے لائق ہی نہیں تھا۔ دن عائشہ باہر بازار جاتی ہے کہ اچانک اسے علی نظر آتا ہے۔ ارے عائشہ کیا یہ واقعی میں تم ہو؟ کہیں میری آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی؟ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا۔ علی، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی، یہاں سے جلدی ہو سکتا ہے تو چلے جاؤ، ورنہ میں چلا چلا کے سب کو بلاؤں گی اور وہ سب تمہیں مارنے لگ جائیں گے۔ عائشہ اتنی نفرت؟ تم تو مجھ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی اور ہم نے بہت سارے وعدے۔ یہیں پر چپ ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھے اور میں تمہیں سب کے سامنے مارنے لگ جاؤں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔
मैं कहती हूँ इसी और इसी वक्त चले जाओ। तुम जैसे लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। इंसान की फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हो। आयशा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए पर, सच कह रहा हूँ। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि बॉयफ्रेंड जैसे हराम रिश्ते सिर्फ महज अल्फाजों तक महदूद होते हैं, जबकि शौहर का रिश्ता कुर्बानी, जिम्मेदारी और मुस्तकिल साथ रहने वाला रिश्ता है। उस दिन के बाद से आयशा ने अहमद की कदर करना सीख ली। वो जान गई कि शौहर जैसे रिश्ते का कोई नेमन बदल नहीं। एक दफ़ा का जिक्र था कि एक शहर में एक शौहर और काम करने वाली उसकी बीवी रहा करती थी। एक सुबह आयशा, आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ का नाश्ता करने को। काम पर जा ही रही हो तो जाने से पहले मेरे लिए एक वसीही चाय और ऑमलेट और पराठा तो बना दो। सॉरी हमजा, मुझे काम से देर हो रही है। मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। या तो मैं ये चूल्हा हांडी का काम कर सकती हूँ, या तो मैं पैसे कमा सकती हूँ। लिहाजा काम वाली को मैंने कह दिया है। आयशा, हर वक्त ने कभी तो बना लिया करो, आज ही तो कहा है। आयशा काम की मसरूफियत की वजह से ऑफिस चली जाती है। बीपी जी, जाने से पहले ये तो बता दो कि खाने में आज क्या पकाऊं? क्या मन कर रहा है? आज मेरा पालक पनीर और रशियन सैलेड का दिल कर रहा है। बना के मेरे हस्बैंड को भी सर्व कर देना। और हाँ, मेरे सारे कमरे की डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब साफ कर लेना, ठीक है? और मैं आऊँ तो किचन चमक रहा हो। याद रहे कोई काम रह ना जाए, समझी? बेफिक्र रहें बीपी जी, इन कामों में मैं माहिर हूँ। आप घर आएंगे तो दिल खुश हो जाएगा आपका। काम वाली मासी आयशा की ज़िंदगी से बहुत मुतासिर होती है और वो दिल ही दिल में इससे हसद करती है। काश इसकी जैसी जिंदगी मैं जी रही होती तो मजा ही आ जाता। लजीज किस्म का खाना बनाने के बाद आयशा हमजा के पास जाती है और कहती है कि साहब जी, आपका खाना लग गया है, गरम गरम रखा है, खा लीजिएगा। मजीद किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हमजा काम वाली के लहजे से बहुत मुतासिर होता है और उसे कहता है, हो शकीला, सच को तो तुम्हारी वजह से जिंदगी आसान है मेरी। साहब जी, आप हमेशा खुश रहें और आबाद रहें। आपको खुश देखकर मेरा सारा दिन अच्छा गुजरता है। हमजा काम वाली के मीठे बोल और उसकी खिदमत गुजारी की वजह से उससे प्यार करने लग जाता है। उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी खातून है और वो उसका बहुत ख्याल रखती है। काश ये गुण मेरी बीवी में होते तो मैं उसके साथ बहुत खुश होता, मगर उसमें कुछ सलीका नहीं है, मेरा ख्याल ही नहीं रखती। अरे साहब जी, आप यहाँ अकेले क्या सोच रहे हैं? कहते हैं तो आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊं, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। शकीला, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, कितना समझती हो मुझे। काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, मेरा एहसास करती। बना दो एक कप मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। साहब जी, काम सारी दुनिया की औरतें करती हैं, मगर आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाती है, इसमें कोई शक नहीं। एक दिन आयशा, कल मेरी अम्मी आ रही है, वो हमारे साथ यहाँ एक हफ्ता रहेंगी, लिहाजा तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी लेनी होगी ऑफिस से। तुमने उनका ख्याल रखना है, और हाँ, अपना हुलिया दुरुस्त का कहना। हमजा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस हफ्ते मेरे पूरे साल का रिव्यू है, और मेरा अच्छा इंप्रेशन मैनेजर के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। आयशा, तुम आहिस्ता आहिस्ता मेरे स्तर पर चढ़ती जा रही हो। अहाँ, अहाँ, ये आपको क्या होता जा रहा है? मैं आपकी हेल्प करती हूँ ताकि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो। ये बात कह के तुम मुझे मेरी नज़रों में नीच दिखाने की कोशिश कर रही हो। आयशा, सीरियसली हद होती है, खुद को दुरुस्त कर लो। हमजा गुस्से में लाउंज में बैठ गया। उसको शदीद गुस्सा आया हुआ था अपनी बीवी के ऊपर। तो में ही काम वाली मासी आ जाती है। क्या हुआ साहब जी? आज तो दिल बड़ा उदास लग रहा है आपका। क्या मैं जान सकती हूँ वजह? इस आयशा की बच्ची ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ है, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। ये खुद को समझते क्या है आखिर? बस अब मेरे सब्र की इंतहा है, मैं इसे छोड़ दूंगा और ये कहीं की नहीं रहेगी। सच कहूँ साहब, तो वो आपके काबिल ही नहीं है। कहा आप इतने अच्छे, खुश इखलाक और एहसास करने वाले। आप में वो सब कुछ है जो एक औरत को चाहिए, लेकिन वो बहुत खुद गर्ज और सिर्फ खुद से प्यार करने वाली औरत है। वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएगी।
शकीला काम करने के बाद अपने घर को रवाना हो रही होती। अरे शकीला, मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें तुम्हारे घर। ऐसी क्या बात है, खुद क्यों जा रही हो? अरे नहीं साहब जी, बहुत शुक्रिया, पास ही है मेरा घर। मैं रिक्शा करके चली जाऊंगी। नहीं शकीला, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के जाया करूँगा। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी मदद करने में। मुझे करने दो ये सब कुछ। हाय, बहुत शुक्रिया साहब जी, वरना इतनी गर्मी में मैं कहाँ धक्के खाती फिरती। शुक्र है आप इतने अच्छे इंसान हैं, बीबी जी से तो मुझे कोई तवक्को नहीं होती। अरे बीबी जी को रहने दो, कोई भी मदद चाहिए हो मैं हाजिर हूँ। मुझे कहा करो, ठीक है? हमजा शकीला को उसके घर छोड़ आता है। हमजा को इसके साथ वक्त बिताने में बहुत मज़ा आता है। उसे अपनी बीवी में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं रहती। एक दिन शकील, आने वाला हफ्ता मेरी मुकम्मल छुट्टी है। सोच रही हूँ तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं। क्या कहते हो? बीच हाउस चले, जहाँ हम शादी के दिनों में नए नए कपल के तौर पर गए थे। कितना मजा आया था, क्या कहते हो? आयशा, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ इन दिनों। मैं कहता हूँ तुम खुद ही चली जाओ। मैं जाऊँगा तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ पे। मेरे कुछ काम है जो मुझे निपटाने हैं। आयशा ये सुनकर उदास हो जाती है, मगर इसे कुछ नहीं कहती। एक दिन साहब जी, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत शदीद खराब है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 दिन की छुट्टी पर चली जाऊं, और मुझे कुछ पैसों की भी जरूरत है। ओ शकीला, तुम्हें मेरी जान चाहिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। जाते हुए मुझसे पैसे ले जाना, कोई मसले की बात नहीं है। परेशान ना हुआ करो छोटी छोटी बात पे। ओ साहब जी, सच कहूँ तो मैं आपकी बहुत कदर करती हूँ। आपके जैसा अच्छा इंसान मेरी जिंदगी में होता तो मैं हर रोज आपके पाँव धो के पिया करती। आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन आयशा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसे शदीद बुखार, सर दर्द और खांसी होती है। हमजा, आज रात का खाना और सुबह का नाश्ता पहले से ही बाहर से ले आओ। मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं बना सकती। काम वाली मासी भी घर पर नहीं है। और मेरी दवाइयाँ भी ले आना। ठीक है, मैं ले आऊँगा। कोई चीज़ रह जाए तो मैसेज पर मुझे बता देना, वो भी ले आऊँगा। ये कहकर हमजा बाहर को चलता है। वो होटल पर अपना ऑर्डर खाने का दे ही रहा होता है कि उसकी आंखें दंग की दंग रह जाती है। वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या मच रहा है, ये तो शकीला है। शकीला रेस्टोरेंट में अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे आई होती है। अरे मुस्तकीम साहब, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है, मगर आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। शकीला मेरी जान, मैं सोचता हूँ डिनर के बाद एक साथ मूवी देखने चलते हैं। तुम क्या कहती हो? अरे वाह, शानदार आइडिया है। काम कर कर के मैं थक जाती हूँ, कुछ एंजॉयमेंट तो मेरा हक भी बनता है। हाँ ना मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, देखो मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूँ। पर अब मुझसे ज्यादा कुछ ख्याल रख पाएगा? हमजा ये मंजर देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत नाजायज़ था, वो जैसे भी है, लेकिन एक बहुत बाकिरदार और इज्जतदार खातून है। और अगर वो जॉब करती है तो घर में मेरा हाथ बटाने के लिए करती है, ताकि मुझे फाइनेंशियली कोई स्ट्रेस ना हो। ऊपर वाले तू ही मदद फरमा मेरी। मैं आज ही घर जाके उससे माफ़ी मांगूंगा। हमजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपनी बीवी के पास जाता है। आयशा, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आया। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, तुम बाहर के दिक्के खाती हो ताकि घर में हमें कोई मुश्किल ना देखनी पड़े। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमजा आयशा को सीने से लगाकर गले लगाता है और उससे माफ़ी का मुजाहरा करता है। मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं आयशा, लेकिन मुझे एहसास हुआ है कि बीवी जैसा मुखलिस रिश्ता कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे माफ़ करना। मैं आज के बाद हमेशा तुम्हारी कदर करूँगा और तुम्हारी इज्जत करूँगा और तुम्हारा बेहद ख्याल रखूँगा। ओह हमजा मेरी जान, तुम्हें एहसास हुआ है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर मैं मेहनत करती हूँ, बाहर दिखे खाती हूँ, तो ये भी तो मेरा प्यार ही है तुम्हारे लिए। मैं नहीं चाहती कि घर का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर हो। आयशा, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी इज्जत करने वाली और एहसास करने वाली बीवी मिली। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना मुझे। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि हमें अपने खूबसूरत रिश्तों की कदर करनी चाहिए और इस जमाने में किसी के ऊपर भरोसा और यकीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।